Namaste and good morning. I am Harshika Khandelwal, FICCI Flow Jaipur Committee Member and Director of Delhi Trading Corporation. My heartiest welcome to the august gathering present here. Today, at this momentous occasion, let us all welcome with a huge round of applause our chief guest, the pride of Rajasthan and the one who needs no introduction. वंश के उस अंश को प्रणाम करता हूं जो सूर्य की तरह दधीचमान है। ये आते हैं राणा सांगा के वंश से, उस वंश से जिसने भारतीय संस्कृति की आन बान और शान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी करी। जिनके चेहरे पर तेज है और जिनकी वाणी में ओज है और उनको देखकर ही महाराणा प्रताप की छवि उनमें दिखाई देती है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं, महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, वो अपने नए मुकाम हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बता दिया है कि रॉयल्टी जो है वो अनटचेबल नहीं है, वो बिल्कुल जैसा आपने कहा सौम्या कि आम आदमी की तरह है और वो कितने सामान्य हैं, कितने विनम्र हैं और किस तरह से जनता के बीच में रह के जनता के व्यक्ति की तरह बात करते हैं। अब इनसे ये पूछा जाए क्या इनका राजनीति में जाने का इरादा है? Thank you. The pride of Rajasthan and the one who needs no introduction, Maharaj Kumar Sahib, Dr. Lakshay Raj Singh Ji Mewar of Udaipur. Maharaj Kumar Sahib, Dr. Lakshay Raj Singh Ji Mewar of Udaipur, is a multifaceted individual excelling in various roles such as philanthropist, educationist, sports patron, business leader, and holder of 8 Guinness World Records. We welcome, sir. It's a huge honor to have you here. FICCI Flow Jaipur chairperson, who is not only smart but also vibrant, injecting energy and fresh ideas into our organization's endeavors. Our very own Mrs. Raghushri Poddar, whose long-term dream of having such a unique celebration of recognizing art and artisans of Rajasthan is being fulfilled today. Let's hear a big round of applause for her vision in the way it's been executed today. I would like to thank FICCI Flow Jaipur founder chairperson Mrs. Neeta Bhuchra ji along with all the past chairpersons for their continuous guidance and support.
Now, I request our chief guest, Dr. Lakshay Singh Ji, along with Mrs. Raghushri Poddar, Mrs. Neeta Ji, and all the past chairpersons to please come forward for the ceremonial lamp lighting. So much. I request Mrs. Neeta Ji and Ms. Tanya Sethia from Gul to felicitate our chief guest, Maharaj Kumar Sahib Dr. Lakshay Singh Ji Mewar. Thank you, Neeta ma'am. Before moving further, I would also like to introduce a FICCI Flow initiative for rural development under the leadership of Raghushri Poddar, headed by Neha Maheshwari. It aims to cover 24 districts of Rajasthan and empower as many women as possible through adoption of renewable energy, thereby mitigating environmental disasters and daily struggle of basic electricity for livelihood. Well, now it's time for the session we all have gathered here for. Let me hand over the mic to our chairperson, Raghushri Poddar, and chief guest, Maharaj Kumar Sahib, Dr. Lakshay Singh Ji Mewar of the royal family of Udaipur, who has been shouldering the responsibilities of a storied legacy that includes Bappa Rawal, Maharana Pratap, and Maharana Sangha with sincerity and humility. Please join us in extending a heartfelt welcome to our chief guest as we eagerly anticipate his insights and words of inspiration. Over to you. Namaste, everybody. Today I feel that there's a positive energy in universe. You have to just close your eyes and call for it, and it's right there. And right here is the positive energy. So, it's so amazing. Can we have a round of applause for our chief guest? Already her introduction for our royal man who's a philanthropist. He's a bike rider, am I right? You're a bike rider? Gee. So it's not that he stops here. He's a Guinness World Book Record holder for saplings. How many saplings, sir, did you start for your Guinness World Book Record? सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम और बहुत-बहुत नमस्कार। मेवाड़ का राम-राम आप सभी को यहाँ पर। Wow. एक बात मैं सबसे पहले जो मेरे को अभी महसूस हो रहा है, जितनी ऊर्जा आप मेरे में भरेंगे ना, उतनी ही मैं वापस आप में भरूंगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं बहुत गैर औपचारिक व्यक्ति हूँ। मैं मतलब जो है औपचारिकताओं से कोसों दूर हूँ। जो सूर्य का और पृथ्वी का जो दूराई है, उतनी ही मेरी औपचारिकताओं से जो है वो दूरी है। और इससे मेरे को एक बात याद आती है कि अकड़ जो है ना, वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है। जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। हम लोग जितना जिंदा दिली से बैठेंगे, जितना हम इस जिंदगी को जिएंगे, उतना ही, और जितना एक दूसरे के अंदर ऊर्जा भरेंगे, उतना ही मेरे को लगता है कि इस सभागार का जो एक मंजर है, एक माहौल है, वो उतना ही जो है वो खुशनुमा होगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बोना शब्द है, पर आज आपने मुझे योग्य समझा, यहाँ बुलाया और ये आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फहरिस्त देख रहा था कि मेरे पहले जो है वो और कौन कौन आए, तो वो नाम जो थे वो काफ़ी मतलब बड़े नाम थे, बड़े अच्छे नाम थे।
तो अब मेरे को उसके बाद में समझ में आया कि एक पहले क्रम से, दूसरे क्रम से, तीसरे क्रम से जब मैं पूरी फहरिस्त को मैंने देखा और फिर आखिरी में जब मैंने मेरा नाम देखा कि अब इस 2024 के अंदर मुझे बुलाया गया है, तो ऊपर के नाम पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्यों बुलाया गया है। क्योंकि मेरे से पहले जितने लोग आए थे वो सभी पढ़े लिखे, बहुत ही कुछ उन्होंने जीवन के अंदर हासिल कर रखा था। अब एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना ज़रूरी था कि जिसने ज़्यादा कुछ किया नहीं हो और उसको भी जो है एक मंच देने की जो है वो आवश्यकता थी। पर आपने केवल मुझे नहीं, मतलब प्रदेश के, राजस्थान के युवा को जो है वो इस मंच के ऊपर जगह दी है। उसके लिए मैं फिक्की को और आपको जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो आपका सवाल था शुरुआती दौर के अंदर सैपलिंग्स का, मैम चंद कुछ हज़ार सैपलिंग्स जो हैं या लाखों सैपलिंग्स जो हैं वो प्लांट करी हैं। अब वो रिकॉर्ड के सिलसिले में ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड भी जो था वो रिकॉर्ड फॉर अ कॉज था। उसके अंदर कोई सोचा नहीं था, कोई मकसद नहीं था। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो है किताबें थोड़ी कम पढ़ी मैम। उसके अंदर क्या था कि अब एक मैं आपको एक और मेरे जहन में, देखिए मैंने आपको बताया जहाँ से जो चीज़ मुझे याद आएगी मैं वहाँ से आप लोगों से चर्चा करना चालू कर दूंगा। सब लोगों ने अंग्रेज़ी के अंदर इतना अच्छा बोलना चालू किया। मेरी एक थोड़ी सी मेरी समस्या है और वो ये है कि मेरी जो अंग्रेज़ी है वो मेरे दोस्तों की तरह है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और ठोस है। पर समस्या ये है कि उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से जो जिनको समझ में आ गई उनको ठीक है, जिनको थोड़े 3 डब्बे बाद समझ में आएगी तब आप आराम से जो है उसको और एक बात मैं यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको मैं ये और बता देता हूँ कि मेरे को उम्मीद जो है ना वो पीछे वालों से ज़्यादा है। क्योंकि उसके अंदर मेरे को जो है वो स्टूडेंट्स और मेरे बिरादरी के लोग और मेरे समझने वाले ज़्यादा लग रहे हैं। और एक चीज़ मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहना, आप आखिरी के 5 रो वाले लोग, कि मैं आपको प्रताड़ित बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ज्ञान की एक बात नहीं करने वाला हूं मैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल फ्री स्टाइल में बैठना, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बोलने वाला लोड नहीं लेने वाला है तो सुनने वालों को लोड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल जो है वो निश्चिंत होकर बैठना और आराम से मज़े से जो है वो झूमते हुए बैठना, ज़िंदगी को जीना। और किताबों की जहाँ तक बात आई उसके अंदर समस्या सिर्फ ये थी कि हमारे जैसों ने क्या किया कि किताबों को चेहरे पे ढक के जो मीठी नींद जो आती है ना, उसका अगर किसी ने सबसे ज़्यादा लुत्फ उठाया है। क्योंकि आज की जो जिंदगानी है उसके अंदर क्या है समस्या कि लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। तब मैं मेरे बड़े भाई की 2 पंक्तियां हैं जिनको कहना चाहता हूं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो आप लोग बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिए। तब किताबों की बात पे मैं आता हूं कि किताबें जो उस समय पे देखी तो वो गिनीज की देखी, क्योंकि उसमें चित्र बहुत होते थे, क्योंकि हमको पढ़ना वही आता था। क्योंकि उसके नीचे जो लिखा जाता था उसके अंदर कोनी मार के बाजू वाले को पूछना पड़ता था कि यार भाई बता तो सही कि इस पे लिखा क्या है। पर वो चित्र अपने आप में ही जो है वो सब कुछ इतने सरलता से, इतने अच्छी तरीके से समझा देता था। और तब दिल दिमाग में कहीं ना कहीं ये साझा हुआ या सपना आया या ख्याल आया या एक सोच हुई या एक बीज पैदा हुआ कि काश हम भी जो है कभी ना कभी इस किताब में आते। और तब जो है वो उम्र महज कोई 7, 8, 10 साल की जो है वो रही होगी। और किसको पता था कि उसके 30 वर्ष बाद जो है वो ये सपना जो है साकार होगा। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार एक भारतीय अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज करवाएगा। तो उस चीज़ की खुशी थी। ही इज़ अ टेड टॉकर एंड दैट्स प्रूव्स। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी भाषा में, सरल भाषा में समझाया। और सरल भाषा दिल को छूती है और इनकी हर वाणी की निकला हुआ हर शब्द आप सबको तालियों की गड़गड़ाहट से समझ में आ गई। अब एक प्रश्न और पूछें आपसे। आप महाराणा प्रताप की डायनासिटी के हैं, तो हाउ डू यू फील कि जब आप रॉयल फीलिंग अंदर कैसे आती, जैसे कि हम किस डायनासिटी, ब्रेव डायनासिटी जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, राणा सांगा, राणा कुंभा, उदयपुर, मतलब आप जब महसूस करते हैं इसे तो किस प्रकार से महसूस करते हैं? अब इसके अंदर सब पहली बात तो ये मैम कि अपन ने तो पीछे तय करा था कि आप मेरे से पेचीदे सवाल नहीं पूछेंगी, और ये आप जो है सवाल की झड़ी की शुरुआत भी नहीं है, उसके पहले ही आपने माहौल जो है बड़ा पेचीदा कर दिया ये। अच्छा, अब सबसे पहले इसके अंदर एक बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, एक बुनियादी बात है। ये सवाल अक्सर मेरे से पूछा जाता है
और उसके अंदर सबसे पहले मैं जो है वो इस सवाल के मुद्दे पर मैं आऊँ या इस जवाब के ऊपर मैं आऊँ, उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर परिवार वालों ने कोई अलग क्रिया नहीं करी थी जो आपके घर परिवार वालों ने नहीं करी, जिसकी वजह से मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। सबसे पहले हम उस बात को समझ लें। मैंने कहीं जो है वो सिफारिश नहीं लगाई थी, मैंने कहीं जो है वो अर्जी नहीं लगाई थी कि मुझे यहाँ पर इस जगह पे या वहाँ पर मुझे जो है वो पैदा करना है। ये प्रकृति का जो है वो एक नियम है और मैं यहाँ पर पैदा हुआ। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इस चीज़ का मुझे फ़ख्र है कि मेरी रगों के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बापा रावल का रक्त मेरी रगों के अंदर बहता है। तो इसके अंदर जो है वो एक खुशी की बात है, और मैं पूरे होश और हवास में इस बात को जयपुर के अंदर बोलता हूँ और बड़े जिम्मेदारी के साथ में बोलता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि सुनने वाले भी इसको उसी जिम्मेदारी से ग्रहण करेंगे जिस जिम्मेदारी से मेवाड़ इस बात को कहता है कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ और इस भाव के साथ में हम हमारे ज़िंदगी को जो है वो जीते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये केवल किसी एक मेवाड़ी के लिए नहीं, पर हर एक सच्चे व्यक्ति के लिए ये चीज़ जो है वो एक सोच या एक परंपरा या एक कानून के तौर के ऊपर जो है उसको वो इंसान मानकर चले, अपनी एक उस सोच के ऊपर चलने का जो है वो एक प्रयास करे। ऐसा कभी भी नहीं है कि घर वालों ने बिठाया हो और क्लास ली हो, डंडा साथ में रखा हो कि तुम ये हो या ऐसा है। मैं सिर्फ इसी बात को बड़े खुशी के साथ में कहता हूँ कि दोनों मेरे माता पिता जो है वो जीवंत मेरे लिए किताब रहे हैं। मतलब अगर बात कोई थी तो हमें उनको पढ़ना आना चाहिए था। उन्होंने बड़े अनुशासनिक तरीके से एक उदाहरणीय तौर के ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, चाहे वो पिताश्री हो या माताश्री हो। दोनों ने जो है वो अपनी ज़िंदगी को अपने अपने तरीके से जिया और उन्होंने बहुत कुछ जो है वो सिखाया है। और इसके अंदर और भी कुछ चंद बातें हैं जो मैं मानता हूँ कि आगे वाले दौर के अंदर जो है वो सामने आएंगी। पर हाँ, ये एक चीज़ एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है, हमारे विरासत का एहसास कराती है, हमारी संस्कृति का एहसास कराती है, जो हम सब लोगों को जो है जो इस देश के अंदर पैदा होना एक भाग्य की बात है, पर इस प्रदेश और इस विरासत से ताल्लुक़ रखना एक सौभाग्य की बात है। क्या बात है। जिसे हम उदयपुर बोलते हैं, वहाँ पे जग मंदिर आप सब ने देखा होगा शायद मोस्टली। तो आज जग मंदिर को जगमग किया इन्होंने, और आज NRI वेडिंग्स, बिग फैट वेडिंग्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटी सब वहाँ आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि रिस्टोरेशन ऑफ आर्ट कल्चर जो अट्रैक्ट करती है उदयपुर को, आपने उसमें आपकी इस धरोहर को आपने किस प्रकार से सहज के और शानदार रूप से एक वर्ल्ड लाइब्रेरी में एक एडवर्टाइजमेंट लाइब्रेरी ऑफ होटल्स लेक सिटी को बढ़ावा दिया है? मैम, इसके अंदर सबसे पहले मैं मेरी बात करूं उसके पहले 2 पीढ़ी पहले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ पर जो युवा जो साथ में बैठे हैं, इन लोगों को उस चीज़ के अंदर जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज की चमक धमक को देखते हैं, मैम ने जो बात करी कि शादियों के बारे में जो झड़ी लगी हुई है, अखबारों में जो चीज़ छपती है हम पढ़ते हैं, देखते हैं, फलाने विदेशी जो है वो आ रहे हैं, अपनी प्रदर्शनी दे रहे हैं, काम चल रहा है, अच्छा लगता है। पर आज के हमको 50 साल पहले जाना बहुत ज़रूरी है। जब मेरे दादाश्री ने, महाराणा साहब भगवत सिंह जी साहब ने इस सोच की शुरुआत करी थी, ये किसी को पता है या नहीं पता है, जो होना चाहिए कि ये आलोचनाओं से शुरू हुआ था। ये आज जो हम झगमग देखते हैं, ये सारी की सारी आलोचनाओं से शुरू हुई थी। तब मैं इस बात को कहता हूँ कि आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बनते हैं, याद केवल उनको किया जाता है जो कुछ कर गुजरते हैं। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, भारत देश आज़ाद हो रहा था, सब लोगों को जो है वो आगे बढ़ने की एक बात आई थी, राह आई थी कि अब दाल रोटी कैसे चलेगी, आमदनी कहाँ से होगी, खर्चा कहाँ से निकलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तनख्वाह के पैसे कहाँ से देंगे, बिजली पानी के पैसे कहाँ से देंगे। तब जो है वो दादाश्री ने सोचा कि नहीं, अपने को जो है इन ढाबों के धंधों के अंदर जाना चाहिए। तब जो है उन्होंने इस सोच के ऊपर जो है अपना पहला कदम उठाया और लोगों ने तब ये आलोचनाएं करना चालू किया, अब मज़ा आएगा, ये राजे महाराजे झूठे बर्तन धोना शुरू करेंगे। तब इस सोच के बाद में लेक पैलेस का जन्म हुआ। 1962 के अंदर जो है लेक पैलेस को एक होटल के अंदर तब्दील करा गया और लोगों ने खूब चटकारे ले लेके आनंद लिया। अगर वो चाहते तो उस सोच को बदल सकते थे, चाहते तो कोई अन्य दूसरा रास्ता अपना सकते थे, पर उस व्यक्ति ने उस राह को नहीं छोड़ा
उस रास्ते को नहीं छोड़ा, उस सोच को नहीं छोड़ा, क्योंकि यकीन था, भरोसा था। और आज खुशी की बात यह है कि केवल उदयपुर में नहीं, राजस्थान के चप्पे चप्पे पे जो है घरों के अंदर, गलियों में, कूचों में, अन्य जगहों के अंदर बेड एंड ब्रेकफास्ट से लेके, गेस्ट हाउस से लेके, होटलें जो हैं वो आज की तारीख में हर जगह के ऊपर खुल गई हैं। और लोग इसको जो है वो एक इज्जतदार पेशे के तौर के ऊपर देखते हैं कि क्या करते हो साहब, मैं पर्यटन के व्यवसाय के अंदर हूँ। पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि शुरुआत जो है वो इसकी सोच के साथ में हुई। पिताश्री ने फिर उस सोच को जो है वो आगे बढ़ाया, 1 से 2 से 3 से आज जो है वो डबल डिजिट्स के अंदर इस व्यवसाय को जो है लेकर आए। हज़ारों लोगों को जो है वो एक रोज़गार देने का जो है काम किया, और रोज़गार से ज़्यादा हिम्मत और हौसला देने का काम किया कि आज अगर आप चाहें तो अपने घर के अंदर ये एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट अब चालू हुआ, पर ये एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट जो है वो तब लोगों को हिम्मत दी थी कि नहीं, घरों के अंदर अगर एक कमरा खाली हो तो किराए पे दिया जा सकता है, उसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। तब जो है वो हम लोग खुशी से कहते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं इस दुनिया की पहली इकाई है। इस बात को समझना बड़ी खूबसूरत बात है। इंसान जो है इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, और देश से एक दुनिया बनती है। जब आपने इतनी सुंदर बात बोली, और ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है यूथ के लिए कि आपने अपनी पीढ़ी का बिजनेस को आगे बढ़ाया, और उसके लिए आप होटल मैनेजमेंट पढ़ने ऑस्ट्रेलिया गए। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया गए तो आप रॉयल ब्लड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप विदेशियों से मिले, तो क्या आपको अलग ट्रीटमेंट मिला वहाँ पर, या आप एक नॉर्मल जैसे एक बच्चा विदेश पढ़ने जाता है? आप बता पाएंगे? ये जो आपने 3-4 बार जिस अंदाज से रॉयल ब्लड कहा ना, उससे कई बार जो है मैं मतलब जो है बड़ा डरता हूँ इन चीज़ों से। पर ऑस्ट्रेलिया का जो दौर था वो बड़ा एक खूबसूरत दौर था। जिस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ने गया, मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि पढ़ाई करी नहीं करी वो एक अलग बात है, पर हाँ मैंने मेरी डिग्री इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ज़रूर जो है वो हासिल करी। बड़ी खुशी थी, पर मेरे को सीखने को जो ज़्यादा मिला ना वो, क्योंकि वहाँ पर उस कैंपस पे 35 नेशनैलिटीज़ और थी। तो जो अच्छी बात मेरे को ये लगी कि अन्य दूसरे लोगों के बारे में, अन्य दूसरी संस्कृतियों के बारे में जो है वो मुझे बहुत कुछ जो है वो सीखने को और देखने को जो है वो मिला। तो वो मुझे जो है सबसे अच्छी बात लगी। और ये जो अलग ट्रीटमेंट मिलने वाली जो बात है वो केवल हिंदुस्तान तक सीमित है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लोगों को उस चीज़ को ठीक करने का बड़ा शौक होता है जो टूटी नहीं होती है। दोबारा बोलूं? क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ताली बजाइए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तालियों को रोक सको तो रोक लेना, क्योंकि इस सोच के लिए ये तालियां कमज़ोर थी, और कोई बात नहीं। पर और यहाँ क्या होता है कि इसके ऊपर पूरी खुल के चर्चा कर ही लेते हैं, मतलब ये मेरे नहीं तो मेरे को तड़फड़ाएगा, ये मेरे को अंदर मेरे को बड़ा पेचीदा करेगा, मेरे को गर्दिश में डालेगा, मेरे को परेशान करेगा। ये जब हम लोग वर्ड रॉयल्टी सुन लेते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि एक तो निहायत ही बदतमीज़ होना चाहिए आदमी, उसके 6 सींग, 25 हाथ, 10 नाक, 15-20 कान तो होंगे ही होंगे, और वो जो है वो गुंडागर्दी के अंदर होगा, निहायती शराबी होगा, सुबह 7 बजे उठता होगा, और वो जो है वो बैठने लग जाता होगा, और अत्याचारी तो होगा ही। उसके अलावा तो उसके अंदर ये टैग जो है वो जीवन के अंदर लग ही नहीं सकता। और इसके अंदर अपन कट टू करते हैं और जाते हैं 80 और 90 के दशक की पिक्चरों पर। वो कोई पिक्चर ऐसी जो है वो बनी नहीं सकती थी कि जो उस गाँव का ठाकुर उस पूरे गाँव पर जब तक अत्याचार ना कर दे और उसकी ऐसी तैसी ना कर दे और उस पूरे गांव की बारह ना बजा दे, और कोई 2 लोग पैदा ना हो जो उसको मारने के लिए खड़े हो जाएं 3 घंटे बाद। क्यों, अच्छी बात है कि नहीं है यार? सही है कि नहीं है? हाँ पंडित जी, है कि नहीं? अपन यूं गुजरिया कि नहीं गुजरिया? गलत बात वे तो बोलो यार। तो इसके अंदर क्या है कि तो ये जो है होते होते और फिर ये बात पहुंच गई उद्योगपतियों पे। हम लोग कोई गैर कानूनी काम तो हम लोग कर ही नहीं सकते, सारे काम जो होंगे गैर कानूनी होंगे, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ना कुछ गैर कानूनी करा होगा तभी ये लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बाकी तो पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो है वो 90 और 80 के दशकों के फिल्मों के अंदर ये लगातार 20 साल तक इस चीज़ की चटनी जो है वो अच्छी तरह से जो है वो बांटी गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ ऑल साइज वन साइज फिट्स ऑल वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं जो निर्णय है वो हम लोगों को जो है वो करने की आवश्यकता है। इस बोझ को, इस वज़न को जो है हम लोग कहीं ना कहीं खुद आकर तय करें कि इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है,
इस बात के अंदर जो है वो हम लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर किस्से कहानियों पे जो है वो चले जाते हैं, तभी इसको कहानी कहते हैं। स्टोरी का असली मायना क्या है? फिक्शनल, जो काल्पनिक हो, जिसको मतलब जो है इंसान ने पैदा किया हो। तो आज हम लोगों को इस चीज़ को समझना है कि ये कुल जब इस बात को कहता है तो वो कुल है जिसने स्वतंत्र शब्द, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जिस शब्द को जन्म दिया, और आज हम पहली आज़ादी की जिस लड़ाई को लड़ा गया और अपने स्वाभिमान के लिए जो है लड़ा गया, अपने खूंटों के ऊपर अपने स्वाभिमान को टांग कर नहीं, अपनी बहन बेटियों को बेच कर नहीं, पर अपनी मिट्टी की स्वतंत्रता को, अपने लोगों की स्वतंत्रता को, अपने लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जिन लोगों ने काम किया, वो लोग कभी भी इस गली और इस कूचे के अंदर जाने का ना कभी भी ना सोचेंगे, ना सोचा है, ना आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो कभी इस बात के ऊपर ख्याल करेगी। इस चीज़ को हम लोगों को जो है वो समझने की ज़रूरत है। और अब आप इसका एक दूसरा परिप्रेक्ष्य देखिए। मैं अगले दिन मैम एक दुकान में गया, मतलब कोई कपड़े खरीदने थे, तो मैं कुछ थोड़े वर्ष पहले की बात है, तो मैं गया, तो उस व्यक्ति ने जो है शक्ल सूरत देखकर उसको लगा कि ये कोई ज़्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति है नहीं, 100-500 रुपये की जो चीज़ें हैं उसको दिखाओ, जैसे हर एक दुकानदार करता है। तो हम बैठे, मैंने कहा भाई साहब कपड़े, तो थोड़ी देर तक तो वैसे देखता रहा मेरे को। तो फिर उसने कहा कि उसने आकलन लगाया होगा, तो निकाला, उसने पहला कपड़ा निकाला, दिखाया, भाई साहब बहुत अच्छा कपड़ा है। मैंने कहा भाई साहब कोई और अच्छा हो तो, ये भाई साहब बहुत शानदार कपड़ा है। और मैं कहता हूँ अगर ये बात आपके दिल तक पहुँच जाए ना, अगर आपको समझ में आ जाए, तो मुझे एहसास ज़रूर कराइएगा कि ये बात आप तक पहुँची है। मतलब मैंने आपको क्या कहा कि जितनी ऊर्जा आप मेरे में भरेंगे उतनी मैं वापस भरूंगा। तो उसने दूसरा कपड़ा दिखाया। ऐसे करते करते हम लोग 4-5 कपड़े जो है वो देख चुके, और उसने भी पूरी मेहनत कर दी, और उसने भी पूरा कपड़ों का जो है वो जखीरा जो है वो वहाँ पर खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई साहब अब सबसे अच्छा वाला कोई जो है वो कपड़ा दिखाइए आप। तो फिर वो 2 मिनट इधर उधर गया, आगे पीछे हुआ, फिर वो एक कपड़ा लेकर आया, और उस कपड़े को उसने जो है जिस कदर और जिस मतलब मन से जो उस कपड़े को जो फैलाया है, बोला कि साहब मेरे पूरी दुकान के अंदर इससे रॉयल कपड़ा आपको नहीं मिलेगा। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि शब्द के मायने क्या है। तो और वो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये बात समझा दी कि हम में से एक हैं। यही आप मुझे बताना चाह रहे थे कि आप हम में से एक हैं, और हमारा देखने का नज़रिया ये होता है कि हाँ आप एक कुमार महाराज श्री लक्ष्यराज, डॉक्टर श्री लक्ष्यराज सिंह जी हैं, फ्रॉम द डायनासिटी ऑफ मेवाड़। तो ये जो इतना बड़ा टाइटल है, जैसे मैंने बोला कुछ शब्दों में, पर आप एक बहुत सिंपल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये आपके परिवार में जो संस्कार दिए कि आप हम में से एक हैं, इसके ऊपर आप नज़र डालेंगे? इसके तो एक बहुत खूबसूरत एक जुमला है मैम, जो कहता है कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। वाह वाह वाह। ये इतनी छोटी सी बात इन्होंने इतने अच्छे से समझा दी। मुझे ऐसे लगता है कि आप खुद ही अपने बारे में ये 2-4 ऐसी बातें बताएं जो हमें नहीं पता, जो सीक्रेट है। सम सीक्रेट विद द ऑडियंस यू वांट टू शेयर। मैं सीक्रेट वाला आदमी नहीं हूँ मैम। मैं खुली खुली किताबें पढ़ने वाला होना चाहिए, बस उतनी सी बात है। मतलब ऐसा कोई काम नहीं, सीक्रेट्स नहीं जो कि मतलब जिसको कहीं कोई दबा कर छुपा कर जो है वो रखने की कोई आवश्यकता हो। मतलब बड़े खुले तरीके से उस चीज़ के ऊपर देखिए, मतभेद जो हैं वो 1000% होने चाहिए। जब तक मतभेद हो रहे हैं, रिश्ता और सोच और व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ रहा है। जहाँ मनभेद हो जाता है वहाँ दिक्कत हो जाती है। सही बात। तो मतभेद करिए, मनभेद मत करिए। क्या बात है, क्या बात है। आपकी जो शिक्षाप्रद बातें छोटी छोटी, आपकी एज से बहुत बहुत ही दीर्घ अवस्था में है, मीन्स आप एक ओल्ड सोल हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि यू आर अ साइंटिफिक गुरु एंड अ स्पिरिचुअल फ्री बर्ड। तो आप इस पे नज़र डालेंगे कि हाउ डू यू एक्सप्लेन योर सेल्फ लाइक दिस? नहीं, मैं उसके अंदर मैं उसको दुरुस्त कर देता हूँ। उसके अंदर मैंने ये लिखा है कि आई एम ए फ्री स्पिरिटेड ट्रैवलर हु बिलीव्स इन अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज, बीइंग अ साइंटिफिक साधु, a rational philosopher, chaotically creative energy. So that is how I describe myself. So it's a paradox in life and it's about a journey. मतलब एक सफ़र की ये बात करता है. And the idea is always to not go through life but to grow through life. Right, right. और लोग ये पूछते हैं ना कि आपको डेस्टिनेशन में इंटरेस्ट है, कि आप जहाँ पहुँच जाए वहाँ आपको इंटरेस्ट है, या आपको सफ़र में इंटरेस्ट है। ना तो मुझे डेस्टिनेशन में इंटरेस्ट है, ना मुझे सफ़र में इंटरेस्ट है।
अब मेरे को इंटरेस्ट उस चीज़ में है कि मैं सफ़र जो है वो कर किसके साथ रहा हूँ और डेस्टिनेशन में पहुँचूंगा किसके साथ, क्योंकि जो साथ वाले हैं ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो नाइदर इज इट अबाउट द डेस्टिनेशन नॉर द जर्नी, इट्स अबाउट द कंपनी दैट यू कीप इन बोथ दीज प्लेसेस. आपके लिए जो एक बात समझी मैंने कि आप बाइक राइड करते हैं, तो आपने कौन कौन सी बाइक्स राइड की और कौन सा आपका फेवरेट स्पीड लेवल आप लेकर गए? इट्स डिफरेंट बट आई थिंक वी ऑल वुड लव टू अंडरस्टैंड. इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास में कोई वो मसालेदार या वो चटपटा जवाब नहीं है, क्योंकि इस मामले के अंदर मैं बहुत ही, पहली बात तो ये कि ये मेरे घर वालों को पता नहीं है. हाँ, तो अभी भी जो है वो जब पिताश्री दोपहर में जब जो है उनकी दोपहर की नींद के लिए जाते हैं तब हेलमेट निकाला जाता है, 2 दोस्तों को पहले तैयार किया जाता है, उनको बोल के बहला फुसला के कि भाई अपने को कहीं चलना है. तो इन चीज़ों को लेकर जो है मैं बड़ा मतलब कॉशियस एक व्यक्ति हूँ कि मतलब इट्स समथिंग दैट यू शुड डू विद द अटमोस्ट केयर. मैं उस गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मना बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, पर जो है वो करना चाहिए, पर उस तरीके से करें कि जिसमें हमारी भी जान जो है वो सुरक्षित रहे और हम लोग उसके साथ में आने के बाद में उस जीवन का जो है वो आनंद भी ले सके, लुत्फ भी ले सके और हमारे घर वाले भी जो है वो निश्चिंत रहें. और जो एक, और जहाँ तक ब्रांड्स का सवाल है, मेरे को रॉयल एनफील्ड्स जो है वो बहुत ही पसंद है. और एक अपने आज की तारीख में एक भारत के लिए नाज की बात भी है कि वो इतना खूबसूरत और एक बहुत ही पुराना जो है वो ब्रांड जो है आज भी ताबीज़ है पूरे तरीके से और अच्छा काम कर रहा है. उससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती और उसको चलाने का एक आनंद ही अलग आता है. जी मैम. अब वो रॉयल बाइक है मैम, बिल्कुल इसमें वो रॉयल आपके साथ जुड़ा हुआ है और हर जन्मों में जुड़ा रहे आपके साथ रॉयल. एक और प्रश्न जो लास्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है. आज आपके पास महलों, भवन, पूरा लेक है. आपका फेवरेट स्पॉट और सबसे सुंदर स्पॉट इस पूरे उदयपुर के अंदर कौन सा है और क्यों? क्या आपकी कोई मेमोरी है वहाँ? मैं इसका जवाब दूंगा मैम. इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ. ये शब्द दोस्त जो हम सब लोगों ने सुना, और हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि शब्द के अंदर किसी को बाहरी तौर के ऊपर ढूंढते या कोई ऐसी चीज़ ढूंढते कि कोई हमारे को बचाएगा. इस शब्द का मायना जो है, मैंने कहा था कि मैं ज्ञान की बात नहीं करूंगा, केवल एक ज्ञान की बात करूंगा. दोस्त शब्द का जो मायना है ना, वो होता है कि दोषों को हरण करने वाला व्यक्ति, उसे दोस्त कहा जाता है. क्यों पंडित जी, ठीक है? तो उसके अंदर क्या है कि आपके, और अपन ये सोचते रहते थे कि अरे यार मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे साथ ऐसी समस्या आ जाएगी तो क्या होगा, मैं किसी दोस्त के पास चला जाता हूँ. तो हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके दोषों को अगर कोई हरण करने वाला व्यक्ति अगर होगा तो सबसे पहले आप स्वयं होंगे. तो सबसे पहले अपना दोस्त जो है वो बनो. अपनी समस्याओं का समाधान आपके भीतर से आएगा, ना कि बाहर से. इस चीज़ को हमारे को जो है वो समझने की ज़रूरत है. और स्थान मेरे लिए जो है कोई जगह या कोई ऐसा नहीं है. स्थान जो है वो मेरे खुद में जो है वो समाया हुआ है. तो मेरे को अपने आप के साथ में वक्त बिताना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वक्त आता है और वक्त जाता है. वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है. तो कि अपन अपने साथ में जो है वो समय बिताएं, क्योंकि एक दौर वो था जहाँ घड़ियाँ किसी के पास नहीं थी पर समय सबके पास था. आज घड़ी सबके पास है. वक्त किसी के पास नहीं. तो अपना दोस्त, अपना स्थान हम स्वयं को जो है वो बनने की आवश्यकता है. और मैं ये मानता हूँ कि उसके अंदर एक खुशी है, उसके अंदर एक अपनत्व है, एक अपनापन है. और जहाँ तक रहा किसी स्थान या शहर से मोहब्बत करने का, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष से प्यार कर लीजिए, मोहब्बत कर लीजिए. उस स्थान से, उस शहर से खुद ब खुद प्यार हो जाएगा. एक मेरे प्रश्न एक और रह गया. मेरे को याद आ रहा था कि मैं उदयपुर गई थी बचपन में और मैंने लेक पैलेस देखा. उसके बाद मैं थोड़े साल बाद गई, तो मैं जब गई मुझे ब्यूटिफिकेशन दिखता रहा. सो दिस इज़ योर एंटरप्रेन्योरशिप और दिस इज़ योर विजन और दिस इज़ अ वेरी important business plan which you have executed to put Rajasthan on the world map? देखिए, सबसे पहली बात तो जब कोई और मार्केटिंग नहीं करे ना तो स्वयं को कर लेनी चाहिए. अब अगला जुमला सुनना कि टाटास या ताज होटल्स का ब्रांड एम्बेसडर मुझे अभी बहुत हाल ही में बनाया गया है. तो ये मेरे लिए जो है वो बड़ी खुशी की बात है.
कि इतने वर्षों के अंदर किसी चेहरे को नहीं चुना गया और मेरे को चुना गया, ये वाकई में मतलब टाटा जैसा ब्रांड किसी व्यक्ति को चुने, ये उनके लिए एक सौभाग्य की बात होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही खुशनसीब वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने मुझे जो है उनका चेहरा चुना। और ताज के साथ में जो रिश्ता रहा ना मैम, वो बड़ी एक खूबसूरत बात है कि आज़ाद भारत के अंदर इतना लंबा रिश्ता किसी और का नहीं रहा। अन्य दूसरी कंपनियां भी जो हैं 35, 37, 42 साल के अंदर अलग अलग हो गई। हम 50 वर्ष के बाद में भी आज भी एक साथ हैं और अपने 75वें वर्ष की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो जहाँ तक लेक पैलेस का सवाल है, वो लोग इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर खड़ी रह जाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो मैं पूरे तरीके से श्रेय उन्हीं लोगों को देना चाहूँगा, उस संस्था को देना चाहूँगा जिन्होंने आज की तारीख में उसको एक 8वां अजूबा इस दुनिया का जो है वो बनाकर रखा है, एक खूबसूरत अजूबा बनाकर रखा है, जो ना कि राजस्थान के अंदर या उदयपुर के अंदर लोगों को आकर्षित करता है, पर पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो लोगों को आकर्षित करने का काम करता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज अगर उदयपुर के तालाब को लेकर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर और लंदन टाइम्स के अंदर जाकर खबर बनती है। ये ताकत हमारा प्रदेश रखता है, तो इस चीज़ की हमारे को ज़रूर खुशी है। इनके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और जिसे बोलते हैं स्वतंत्र सोल, स्वतंत्र जीव है, और जो एक सादगी और वापस मैं शब्द यूज़ करूँगी रॉयल है, बट रॉयल आपका सोल है, आपकी सोच है। आपकी सोच से तालियों की गड़गड़ाहट वैसे इस लेवल पे हर ऑडियंस में नहीं आ पाती, एक ही बार लास्ट में बजाते हैं, पर हर 5 मिनट बाद जो तालियां बज रही है, मतलब कुछ आपकी बातों में बहुत दम है। माल ओरिजिनल होता है ना। और सच्चा होता है ना, तो अपने आप बचती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कैसे होता है वो बताओ मेरे को एक बार। आपसे बात करने का मन कर रहा है कि 1-2 घंटे और बातें करते रहें, इतनी अच्छी आपकी विचारधाराएं, विचार शैलियाँ। पर अब क्या है कि समय आ गया है आपको टूर कराने का जयपुर आर्ट फेयर। जयपुर आर्ट फेयर आप ही से रिलेटेड है, क्योंकि आपने जो आर्ट कल्चर को, आर्ट के साथ कल्चर ज़रूरी है। संस्कृति हमारी हिंदुस्तान को गर्वित करती है, हमारा पहनावा, हमारे बोलने के तौर तरीके, हमारे बड़ों के लिए आदर सत्कार, अगर हम उसे परंपरा की तरह जोड़ते रहें तो उदयपुर, जयपुर, राजस्थान आज पूरे भारत में अपनी अलग पहचान छोड़ता है हमारी हॉस्पिटैलिटी को लेकर। और आपको जयपुर में, राजस्थान में हर जगह एक प्रेम, मोहब्बत इस प्रकार मिलती आ रही है। मैं आपकी इंस्टाग्राम से देख रही थी, आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हैं। तो आज की दुनिया में आपको कैसे पता करना है कौन फेमस है? इंस्टाग्राम पे जाइए और आपको पता पड़ जाएगा। तो आपको कैसा महसूस होता है, हम वाइंड ऑफ करें उससे पहले, कि आपके पास इंस्टाग्राम पे कितने मिलियन, थोड़ी कमज़ोर है मेरी गणित। वो एक डिजिटल एक परिवार है, उसको देखकर अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। रात को बैठकर मैं भी देखता हूँ कि कितने बड़े, नहीं बड़े, किसने क्या लिखा। आखिरी के सोने से पहले के जो 15 मिनट होते हैं उसके अंदर मतलब बैठकर एक सरसरी निगाहों से देखना कि किसने क्या लिखा, वो मेरा एक शौक़ है। मतलब आखिरी के 15 मिनट में ज़रूर उस चीज़ के अंदर बैठकर पढ़ूंगा, जवाब दूंगा। और वो एक आज का एक 21वीं सदी के अंदर इस तकनीक की ज़िंदगी के अंदर वो एक बहुत ही अहम हिस्सा हम लोगों का बन चुका है। पर जब तक हम उसके गुलाम नहीं बन रहे हैं तब तक सब ठीक है। जब तक मतलब हम उसको चला रहे हैं और वो हमको नहीं चला रहा है, तब तक जो है वो सब कुछ ठीक है। और वो मैं उसको एक परिवार के रूप में देखता हूँ। और लोग अपनी नाराज़गी भी बाकायदा वहाँ पर दर्ज करवाते हैं और अपनी खुशी और प्रेम और प्यार और मोहब्बत भी जो है वो वहाँ पर दर्ज कराते हैं। इससे मेरे को एक जो है वो बड़ी एक खूबसूरत सी बात है जिसके अंदर दोनों तरफाएं जो है वो चर्चा हो सकती है। तो किसी को मेरी कभी केसरिया पतलून अच्छी भी लग जाती है और किसी को नहीं भी लगती है, तो वो पूरे तरीके से आज़ाद है उस चीज़ को वहाँ पर लिखने के लिए। और फिर उसके बाद में जो 2 लोगों की झड़ी लगती है एक दूसरे से बात करने में, वो भी अपने आप में जो है वो बड़ी रोमांचक होती है कि एक मेरे लिए लड़ रहा है और एक मेरे खिलाफ लड़ रहा है, और फिर अंत में आकर उसने भी वही अमीली जामा पहन लिया। तो मतलब उसको देखकर, सुनकर, पढ़कर जो है वो खुशी तो होती है। बिल्कुल, क्या बात है। तो आज देखिए, फ्रॉम आर्ट कल्चर ऑफ पैलेसेस
टू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन्होंने सब जगह अपना सिक्का रॉयल वाला जमा रखा है। मतलब मैं केवल इंस्टाग्राम तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ, मैं लिंक्डइन पर भी हूँ, मैं ट्विटर पर भी हूँ। मैं ये कोई नहीं कहना चाहता कि आप यहाँ पर जो बैठे हैं मुझे जाकर फॉलो करें, ऐसा कहने का मेरा कोई विचार नहीं है। नहीं, पर आज आपकी चर्चा के बाद आई एम श्योर हाउ मेनी फैंस आर हियर ऑफ सर। नहीं, बहुत बहुत आभार जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। सो रियली फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हार्ट, मेरे को बॉटम ऑफ द हार्ट थोड़ा पसंद कम आता है, मेरे दिल के ऊपरी छोर से जो है वो आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। So one last message for the auditorium of Jaipur and for all our students, हमारे dignitaries, हमारे guests from yours. मैं बहुत ही कोई बौना व्यक्ति हूँ, कोई एडवाइस देने वाला आदमी मैं हूँ नहीं, ना मैं देता हूँ, और कोशिश भी ये करता हूँ कि कमी लूँ। पर सुझाव के तौर के ऊपर ज़रूर एक बात है जो मेरे मतलब जो युवा साथी जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर अपने लक्ष्य को तय कर रखा है ना तो उसके ऊपर पूरे तरीके से अड़िग रहना, और अगर उसके ऊपर राज करना है तो सोच को कभी जीवन में इतनी गहरी मत करना कि फैसले कमज़ोर होने लग जाएं। क्या बात है, क्या बात। तहे दिल से फिकी फ्लो जयपुर चैप्टर रघुश्री में आपका धन्यवाद करती हूँ। आप उदयपुर से हमारे लिए आए, फिकी फ्लो के सौभाग्य हैं ये, रॉयल सौभाग्य ऑफ फिकी फ्लो। थैंक यू, धन्यवाद। Let's express our gratitude to our host and our chief guest with a big round of applause. Now, the doors of the Jaipur Art Fair organized by Ficky Flow Jaipur are officially open. The Jaipur Art Fair is a unique and vibrant platform where we have for you the artwork of 16 national award winners, artists championing women empowerment, 88 stalls of artists and artisans from all over India, and delectable food stalls. Many engaging workshops and talk shows in the 2 days celebrating our culture and heritage. At the end, I would like to thank all the dignitaries present here, Mr. Nihalji Goyal from RIC and his team. I would like to call upon our collaborators on stage, Gaurav Bardia from Imperial Club, Mr. Ankit Jain, Iti Jain from Spectre Quartz, Mr. Himanshu and Nikita Kuteta from Twisha Jewels, Mr. Rajkumar Kandoi from Mayur School, Mrs. Neha Maheshwari, Mrs. Trishti and Mrs. Garima from Client Associates, Ms. Tanya from SK Finance, Mrs. Pooja Agarwal from Juniper. I would also like to call upon stage Mrs. Bharti Katta. I thank Mrs. Ravi Satlani and Mrs. Ekta Gambhir for their extraordinary efforts. I also thank Mr. Anand Khandelwal and Harshika Khandelwal from Delhi Trading Corporation, Mrs. Rashmi Sablawat from Reddy Prints, TGX Cargo, Hyundai Motors, Food Partners, Mishri, Gayatri Poddar Charitable Trust, and Amrita Naturals. I would like to thank all the schools for their installations, Wanda Cement, media partners, our artists and artisans, and the volunteers. So finally, now with the permission of our dignitaries, I invite you all to the magical and mesmerizing and empowered world of arts and crafts at the Jaipur Art Fair. Our volunteers are there to assist you all. Thank you everyone to be the part of this amazing event. Have a great day.
persons of world class. Keep in touch. सर एक ही आइए 6 की आइसक्रीम वहाँ पे 8 Just one single picture with sir here. And thank you for being Yes, sir. जब मैं अभी इन दिनों मिलने लगी लास्ट 3-4 सालों से तो बोले हमारे बच्चे इस कार्य क्षेत्र में नहीं आना चाहते, उनको लगता है हम छिपा के बच्चे हैं, वो वाइट कॉलर एक कॉल सेंटर में जाना चाहते हैं। अगर हमारी धरोहर ख़त्म हो जाएगी तो राजस्थान की एक जो परिपक्वता है जहाँ वर्ल्ड मैप में जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आर्ट तो एक फैमिली की जनरेशन टू जनरेशन जाता है, सीखने वाले कॉलेज में सीख सकते हैं, बट जो डीएनए में आ जाती है चीज़ें वो डीएनए में आती है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इन आर्टिस्ट को बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे सेलिब्रेट किया जाए और उनको आज वो दिखाया जाए जिसके कारण बहुत गुण है और बहुत बड़ा बिजनेस का ये व्यापार है और इसको एक बहुत बड़ा विजन देने के लिए। तो ये सुनती रही, लास्ट ईयर मैंने इस बारे में सोचा था कि मैं जयपुर आर्ट फेयर करके एक आयोजन करूँगी। सोचती रही और फिर वो दिमाग की कल्पना बनती गई, इसको बोलते हैं ना ख्वाबों का किला। तो जो मेरे हसीन सपने थे आज ही साकार हो गए, लक्ष्यराज जी आ गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पॉजिटिवली यूनिवर्स में कुछ अच्छे कार्य के लिए बढ़ते हो तो स्वयं आप जिसे बोलते हैं ईश्वरीय ताकत आपके साथ चलती है इसको बढ़ाने के लिए। मेरी पूरी टीम, मैंने चेयरपर्सनशिप ली अप्रैल में और ये 15 दिन में पूरा प्रोडक्शन किया, पर ये ख्वाब 1 साल से था। और ये सब उनकी जो पीड़ा सुनती थी कि हमारे बच्चे कार्य क्षेत्र में नहीं आना चाहते, तो उनको आज ये बताना था कि ये बहुत बड़ा आर्ट है, आप एक सेलिब्रिटी हैं और आप ही हैं जो हमारे राजस्थान को आगे एक मैप में दिखा रहे हैं कि लोग कल्चर के लिए विदेशों से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही हैं देश विदेशों की। तो इससे चालू रखें, अपने परिवार के काम में जुड़ें और एक बहुत बड़ी इसको लुक देने के लिए हमने इसे एक सेलिब्रिटी आयोजन बनाया। लक्ष्यराज जी पधारे, ये भी हमारे उनके भाग्य थे कि एक कुंवर महाराज साहब फ्रॉम उदयपुर आके हमारे की एक जने से वो मिले आर्टिस्ट से, तो आज वो अपने आप में सेलिब्रिटी बन गए। अब हमारे पुरस्कार अवार्ड भी है, नेशनल अवार्ड विनर से स्टार्टअप है यहाँ पर और इसको हम एक बड़ा रूप देना चाहते हैं पूरा जयपुर आकर देखिए, राजस्थान देखिए इसे और ये बढ़ता जाए। जी अच्छा, मेरा नाम रघुश्री पोदार है, मैं डायरेक्टर चीफ सागर एक्सपोर्ट्स हूँ और मैंने एक रीमी करके एक ऑर्गेनिक ब्रांड चालू की है जो सिर्फ हाथ से बनी चीज़ें जैसे चारपाई घाट को मैं वापस रिवाइव कर रही हूँ मॉडर्न तरीके से, और लिनिन जो ऑर्गेनिक कपड़ा है उस पर काम कर रही हूँ। ब्लॉक प्रिंट मेरी वीकनेस है और फिकी फ्लो जयपुर चैप्टर की 2024-25 की मैं अभी चेयरपर्सन हूँ और फिकी फ्लो के बैनर के अंदर जयपुर आर्ट फेयर को एक रूप देखा है, आप सब देख सकते हो साथ में। और पूरे जयपुर को बताइए, वर्ल्ड को बताइए कि राजस्थान में कला का कितना बड़ा उद्योग है। नमस्ते। आज की ज़रूरत नहीं है, आपको इंस्टाग्राम मीडिया, सोशल मीडिया पे जाके तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे को हम इन्विटेशन देंगे, आप प्लीज़ आइए हमारी सब कार्यभागी में आप भी साथ। सहयोग ही होती है, टीम वर्क होता है सब कुछ, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता।
मैंने तुमको ये डॉक्टर दिया जाएंगे अभी भी आएंगे तो आधे घंटे में डॉक्टर The character Langsat in Freedom Club has successfully awakened the families into our traditionality. The
They are working with the tribal women and they are making all these things by their hand. This is cross stitch embroidery. ये सब उन्होंने बनाया है. अच्छा, okay. These are all credits. So we are helping actually two communities. One is Karwat and very nice. With a bigger one knife, bigger one sketch pad, and very smoothly you have to spread it on the palette. Then we have to take ये छोटा वाला जो knife है हमारा, हम लोग उसको लेंगे and keep this portion on the palette vertical. See, can you see it? See this portion, this line. And this is how you have to scrap it out. See? Okay? And आपको इस तरीके से इसको प्लेस करना है फिर ये देखिए ये आपका भैया थोड़ा जूम इन करेंगे हाँ सी एक बार और दिखाती हूँ मैं एक बार और आप लोग ध्यान से देखिए पहले आप देख लीजिए फिर कीजिएगा फर्स्ट यू वॉच इट देन यू विल ट्राई टू डू फर्स्ट यू सी इट अगेन आई एम गोइंग टू वाइप इट
कीप योर नाइफ ऑन द पैलेट फ्रॉम दैट साइड ओनली. जैसे हम इधर से स्टेप आउट कर रहे हैं तो फ्रॉम दैट साइड ओनली यू हैव टू प्लेस इट लाइक दिस. यू आर सपोज टू प्लेस इट लाइक दिस. It depends. Like अगर टूटने लगता है तो you will leave it early. Otherwise you can, if you want to make a big fan, you will have to more sparing things. So this is fan wave. Okay, I taught you this one, a fan wave. Now we'll learn simple leaves. How can we create simple leaves? Again, process same होगा. जो हमारा leaves उठाने का है, डो उठाने का है, वो process same होगा. But now this time you have to, knife के middle में हम ज़्यादा clay को लेंगे instead of taking it from the top portion. Okay? In the middle, यहाँ पे, यहाँ पे, बीच में. इस तरीके से लेंगे तो ये कर्व शेप देगा. कर्व ये आपकी नाइफ को कर्व शेप देता है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग फैन शेप इट विल गिव यू अ कर्व शेप, सेमी सर्कल काइंड ऑफ. देखिए ये ऐसा है ना, ये ऐसा देगा. तो ये हम लोग लीव्स के लिए यूज करते हैं, ये वाला शेप है ना. बीच में ज्यादा हम क्ले को उठाएंगे, टॉप से नहीं उठाएंगे, बीच से उठाएंगे. तो ये हमको हाँ मैं दोबारा दिखा दूँ. देखिए ये नाइफ है. नाइफ को हमने रखना तो ऐसे ही है, लेकिन हम जब पहले एक दो बार उठाएंगे उसके बाद हम बीच में इसको ज़्यादा क्ले लेंगे, बीच से, सेंटर से. ओके, सो like this. So this is one side of leaf. Now another side अगर बनाना है हमको तो कैसे करेंगे? अभी हम लोग इस तरफ से क्ले को उठा रहे थे, इस साइड से, है ना. हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे थे. अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे. अभी हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे इसका. सो फ्रॉम अनदर साइड वी स्टार्ट स्टैपिंग आउट ऑल द क्ले एंड देखिए ये कर्व शेप अगेन कर्व शेप बन गया ऐसा. देन क्या करेंगे, जो हमने राइट साइड वाला जो लीफ बनाया था उसी के ऊपर हम लोग इसको रखेंगे एंड नीचे की साइड इसको दबा करके लाएंगे. तो इट विल एंड देन विल जॉइन इट टुगेदर लाइक दिस. इट विल गिव यू अ शेप ऑफ लीव्स. ओके, ये आपको लीव्स का शेप देगा.
है